بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہماری ناول کی دوسری قسط جو ہے سٹارٹ ہو رہی ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی دوسری قسط کو۔ روم میں آتے ہی یشم نے بیڈ پر بیٹھی پشمشا سے پوچھا تو جس پر بن فشے نے منہ پھیلا کر یشم کو دیکھا۔ آپ بات مت کریں مجھ سے یشم، میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ پرمیشن نہیں دینی، مگر آپ نے تو ایک نہیں سنی میری اور بھیج دیا ایسے اتنی دور ہم سے۔ اس کی ہر ضد پوری کر کے ہم نے اسے ضدی بنا دیا ہے۔ ارے بھائی بھی اتنا غصہ؟ بشفشا کے غصے بھرے انداز پر یشم نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ اور وہاں کون سا گھومنے گئی ہے، پڑھنے گئی ہے، واپس آ جائے گی۔ ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ایسے کہ گزرے، کیسے گزریں گے یہ دن؟ یشم میں تو ابان کے جانے کے خلاف تھی، آپ نے نور کو بھی بھیج دیا۔ یہ بھی ہے، اب مجھے اپنی غلطی کا بری طرح احساس ہو رہا ہے۔ یشم کے افسوس بھرے انداز پر منفی نے حیرت سے دیکھا۔ کیسی غلطی؟ 2 کی جگہ 4 بچے ہونے چاہیے تھے تاکہ آپ کا دل لگا رہتا۔ یشم کی شرارت سمجھتے ہوئے شرم سے لال ہوئی تو یشم کو کیا بحثہ آتا تھا۔ ریلیکس کر رہے ہو، 6 مہینے کی بات ہے اور ویسے بھی یہ سب ضروری تھا نا؟ ہم سارے لاتے۔ اس نے یشم کے کندھے پر سر ٹکایا تھا۔ سنوئی آسمان کی چادر نے پورے ماسٹر کو اپنی لپٹ میں لے لیا تھا۔ کلاس میں ونڈو کے پاس بیٹھی وہ کام کرنے میں مصروف تھی جب باہر ایک دم سے شور اٹھا۔ اس نے سر اٹھا کر باہر کی جانب دیکھا جہاں اب بارش ہورے برس رہی تھی۔ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں تانیہ؟ فٹ بال گراؤنڈ۔ تانیہ نے موبائل پر سے نظریں اٹھا کر جواب دیا۔ بارش ہو رہی ہے فٹ بال؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بارش اور فٹ بال میچ نہ ہو تو ایسے ہی پاسبل ہے۔ اتنی بارش میں فٹ بال میچ؟ گر گئی تو چوٹ لگ گئی تو؟ اس کی بات تانیہ کا چھت پھاڑ کھینچ گونجا۔ وہ ہوا ہو شرمندہ ہوئی۔ ریلیکس، نہیں گریں گے وہ کیوٹ گرل۔ اس کی گال کھینچتے ہوئے ہنسی تو ماہر چپ گئی۔ تم سے ایک بات پوچھی، کیا تم عالم کو جانتی ہو؟ عالم کو کون نہیں جانتا، ہماری یونیورسٹی کا بیڈ بوائے ہے، عالم دی گریڈ۔ وہ بیڈ بوائے ہے؟ اس ایسا حیرت ہوئی تھی۔ ہاں، لیکن ایک بیڈ بوائے کی عادت بہت اچھی ہے کہ وہ لڑکیوں سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا، اور اگر کوئی لڑکی اس سے بات کرے تو اتنی بری طرح سے بےعزتی کرتا ہے کہ وہ بیچارے لڑکی دوبارہ بات کرنے کی سے ڈرتی ہے۔ تانیہ مزے سے بتا رہی تھی، وہ منہ کھولے حیرت سے سن رہی تھی۔ ہاں، یہ ٹھیک تھا کہ وہ خود سے بیڈ بوائے لگتا تھا، مگر اس نے ہمیشہ اس کے ٹھیک سے بات کی تھی، تو جب وہ لڑکیوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تو لڑکیاں نہ کیا کریں نہ بات۔ اس کی بات تانیہ ہنسی تھی۔ کن سی بات ہے یار؟ خیر، ابھی دیکھو عالم کا میچ ہو رہا ہے اور تم دیکھنا وہاں ساری لڑکیاں سے سپورٹ کر رہی ہوں گی۔ عالم کا میچ مطلب عالم اور اس کی ٹیم کا میچ؟ کیا تم دیکھو گی؟ چلو آؤ، آج میں تمہیں فٹ بال میچ دکھاتی ہوں، تمہیں سچ میں مزہ آنے والا ہے۔ بہت اپنا بیگ کندھے پر ڈالتے اس نے ماہر کو کہا تو وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ فٹ بال گراؤنڈ میں ایک طوفان بدتمیزی بڑھا۔ دونوں ٹیموں کے سپورٹرز شور مچا کر کھلاڑیوں کے حوصلے بلند کر رہے تھے۔ یہ سب اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ آسمان سے برستی بارش اور بارش میں کھیلتے وہ سب سے ہوتی اس کی نظریں ایک منظر پر آ کر رکی تھی۔ ٹیم یونیفارم پہنے وہ عالم تھا، اس کے بعد پیچھے ٹو ملاقاتوں کی طرح پونی میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ پوری طرح سے بارش میں بھیگ چکا تھا۔ عالم حجب موجود لڑکیاں اس کے سامنے آتے ہی چلائی۔ ماہی نے ناگواری سے انہیں چیختے دیکھا۔ انہیں کوئی کہے ہم بہرے نہیں ہیں، کان پر ہاتھ رکھتے اس نے منہ بنایا۔ تانیہ کو ہنسی آئی۔ اس میں ذرا سی بھی شرم نہیں، کیسے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کھڑی ہے۔ اس کا چیخ کا عالم کو پکارنا اسے بالکل اچھا نہیں لگا۔ یہ سب عالم کے لیے جو یہاں کھڑی ہیں، مگر مجھے نہیں لگتا وہ ان میں سے کسی کو بھی دیکھے گا۔ تانیہ کی بات تھوڑا ریلیکس ہوئی۔ تمہیں عالم کیسا لگا ہے ماہی؟ ویلن جیسا، وہ ساختہ بولی تھی اور پھر فوراً ہی دانتوں تلے زبان دبائی۔ ویلن؟ مجھے تو عالم ہیرو لگتا، تھوڑا روڈ غصے ہیرو، ایسے ہی تو ہوتے ہیں نا لڑکیوں سے دور بھاگنے والے۔ ہاں ایسے تو پھر تمہیں میرے لالا مطلب میرے بھائی بھی ہیرو لگیں گے، وہ بھی ایسے ہی ہیں لڑکیوں سے دور رہنے والے، مگر وہ روڈ اور بدتمیز نہیں۔ عالم کے ایک لڑکی کی طرف پانی کی بوتل اچھلاتے دیکھ اس کے ماتھے میں بل پڑے تھے۔ تم نے تو کہا تھا کہ عالم لڑکیوں سے دور بھاگتے ہیں۔ اس کی نظروں کے تعاقب دیکھ کر تانیہ نے سر ہلایا۔ ان لڑکیوں سے جو فضول چپکتی ہیں یا پتہ نہیں عالم کے بارے میں اتنا ہی جانتے جتنی یونی کی باقی لڑکیاں۔ کندھے اچھا کر کہتے وہ ماہی کو لاجواب کر گئی۔ میچ اب اپنی سنسنی موڑ پر تھا۔ گراؤنڈ اب بڑھتا جا رہا تھا اور ان کا شور بھی، لگتا تھا پوری یونیورسٹی یہاں کی تھے۔ عالم بال کے تعاقب میں تیزی سے بھاگا تھا، بال اب اس کے پاس تھی جب اچانک ہی دوسری ٹیم نے کھلاڑی بری طرح سے ٹکرا کر زمین پر گرتا چلا گیا۔ سامنے کا منظر ایسا تھا کہ ماہی لمحے کو سانس لینے بھول گئی۔ گراؤنڈ میں ایک دم سے سناٹ چھا اور پھر ایک بار پھر شور اٹھا۔ عالم اپنی جگہ سے اٹھنے واپس اپنی پوزیشن سنبھال چکا تھا۔ ماہی آری اوکے؟ اسے دم سادہ دیکھ کر تانیہ نے ہوش دلایا تھا۔ یس آئی ایم فائن۔ گہرا سانس بھرتے وہ مشکل مسکرائی تھی۔ میچ ختم ہونے کے قریب تھا، اس کا ارادہ پورا میچ دیکھنے کا تھا، مگر ابان کی کال دیکھ وہ وہاں سے نکل کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ تیز برستی بارش سے بچنے کے لیے وہ اس خالی کلاس روم میں آ گئی تھی۔
लाला डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। आई नो ठीक, मगर तुम्हें अपना ख्याल रखने के लिए मास्टरा में इतनी तेज बारिश है, तुम घर क्यों नहीं गई? माही वो इसके लिए बहुत परेशान था। लाला मेरी क्लास थी और दूसरा मेरे का डिपार्टमेंट यहाँ से दूर है। इस तक जाते जाते मैं पूरी भीग जाती, इसलिए बारिश रुकेगी तो मैं पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाऊंगी। और इस मतमन करने की कोशिश में हलकान हो रही थी। मेरे बच्चे, तुम मेरी जिम्मेदारी पर यहाँ हो, प्लीज अपना ख्याल रखो। मेरे प्यारे बान, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको परेशान नहीं होने दूंगी, आई प्रोमिस। मैं अपना ख्याल रखूंगी, आप टेंशन मत लें। इसके लाड जताने पर अबान के होठों पर मुस्कुराहट आई थी। अच्छा बस इतना प्यार नहीं दिखाओ, हाय मैं। वो फौरन से मुंह फुला गई तो अबान का कह गूंजा था। हाँ मीन, चलो अब मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, तुम अपने ख्याल रखना, बाय, आई लव यू। वन, आई लव यू टू गुड़िया, बाय। फोन रखते हुए जैसे ही मुड़ी पे साथ इसकी चीख निकली थी। अपने पीछे आलम को खड़ा देख इसकी जान निकली थी। वो कब आया इसे पता क्यों नहीं चल सका। इसे यूं अचानक अपने सामने देख बुरी तरह से खौफजदा हुई थी। वो बारिश में मुकम्मल भीगा खड़ा था। हद करती हो लड़की, ऐसे चीखती हो, मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाता। दोनों हाथों से बाल पीछे करते हुए नौगारी से बोला तो माही ने घूर कर से देखा। हार्ट अटैक आपको नहीं मिस्टर, मुझे आ जाएगा। ऐसे कोई आकर खड़ा होते हैं बिना आहट किए। हाँ, जिन्हें आना होते हैं बहुत चुपके से बिना आहट आ जाते हैं, सामने वाले को खबर भी नहीं होती कब कोई बिना आहट इनके दिल में आया और फिर इनकी जिंदगी बन गया। इसकी निगाहों में माही की हसीन चेहरे पर जमी थी। आप ऐसा आपको लगता है, मुझे नहीं, फजूल में डरा दिया मुझे। गुस्से से बड़बड़ाते वो क्लास से बाहर आई थी, मगर बारिश मजीद तेज होती जा रही थी। दरवाजे से टेक लगाते आलम ने सीने पर हाथ बांधे अपना सर दीवार से टिकाया था। वो बहुत फुर्सत से देख रहा था। बारिश तेज हो रही है, भीगी तो बीमार होना लाजिम है। मैंने आपसे नहीं पूछा कुछ, गुस्से से जवाब देते इसने मोबाइल निकाल कर मेरे का नंबर बनाया। दूसरे पर बेल तो जारी थी मगर कॉल कोई रिसीव नहीं कर रहा था। माही को सख्त गुफ्त हुई। बरसती बारिश में अपने प्यारे लोगों से दूरी बहुत गुस्सा दिलाती है ना। गुस्से का तो पता नहीं, मगर आपकी मौजूदगी मुझे अब इरिटेट कर रही है। तुम्हें मेरा इस लड़की से बात करना अच्छा नहीं लगा ना? इसके इतने सही अंदाजे से काल मिलाते इसके हाथ सख्त हुए। इसने मुड़कर देखने गलती नहीं की थी, वरना वो इसकी आंखों में देखकर अपनी बात के सही होने की तस्दीक कर लेता। लगता तो है चोट ज्यादा जोर से लगी है, दिमाग हिल गया है आपका मिस्टर। जी, मैंने 2 दफा तुम्हारी जान बचाई और अपने मोहसिन से ऐसे रूडली बात कर रही हो। मैंने कब रूड बात की है? बिल्कुल अभी तो अच्छा है आपको जो भी लगे, मुझे क्या। हाँ, ये भी मुझे ही है, आपको क्या? आपकी वजह से मुझे चोट तो मुझे लगी है ना। इसकी बात पर माही ने गर्दन मोड़कर इसकी आंखें छोटी कर कैसे घूरा था, जैसे इसको ये चोट देखना चाहती हो। आलम ने बेमुश्किल अपनी हंसी में मुस्कुराहट जब्त की। कुछ मत बोले आप मिस्टर आलम, माना कि आपने 2 दफा मुझे बचाया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अब कुछ भी बोलेंगे लगे। अच्छा, बाकी तो उन्होंने नहीं कहा कि मैं तुम्हें विलेन जैसा लगता हूँ? मैं सुनकर शॉक्ड हुआ था। तभी मेरा ध्यान भटका और मैं गिर गया। वो फुल बेचारे के चेहरे पर सजाए के तस्के जगह सर गिरा गया। इन दोनों के दरमियान काफी फासला था, वो कैसे इसकी बात सुन सकता था? मेरे कान बहुत तेज है, मैं दूर है फासले की बात भी सुन सकता हूँ। हाँ, इन्हें कैसे पता चला? दिल में कहती इसने बगौर आलम को देखा। इसने कहा ना मेरी आंखें और कान तेज हैं, चेहरा पढ़ लेता हूँ। अब की बार माही को वाकई से खौफ आया था। कहीं ये भूत तो नहीं हो जाती। खौफजदा सी इसके चेहरा देखने से दिल में सोचा। जब आलम का केक स्टान को चीरता गूंजा तो खौफजदा होते 2 कदम पीछे हुई। नहीं माई बेबी, मैं जिन भी नहीं हूँ। शरार से क्या तो उसकी आसान खता कर गया। बिना कुछ भी सोचे वो तेजी से बाही की जानब भागी थी कि एकदम इसका हाथ आलम की गिरफ्त में आया तो उच्चे खींचते पीछे हुआ। इसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, आंखें नीचे उसके करीब खड़ी थी। तुम पागल हो, अभी भीग जाती। इसका बादल थाम कर इसे अपने रूबरू करते हुए जैसे इससे खफा हुआ था। आप भूत? आंखों में आंसू भरे इसने आलम को देखा तो इसका दिल की अपना माथा पीट ले। आप जितनी बुलंद सोचती हो ना, आपकी सोचें पड़ोसी भी पढ़ ले। बेवकूफ लड़की, इसे माथे पर 2 उंगलियां मारते हुए इससे 2 कदम दूर हुआ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, बेवकूफ के जाने पर इसने तड़प कर कहा तो आलम ने ऐसे सर हिलाया जैसे इसकी बात पर यकीन न हो। मुझे घर जाना है, आप अच्छे नहीं हैं। मुंह बसौर करती हुए कोने पर रखी बेंच पर बैठकर मेरे वो कान करने लगी। हेलो मेरे, कहा हाँ यार, मैं कब से कॉल कर रही हूँ। गुस्से से इसका चेहरा लाल हो रहा था। आलम ने इश्तियाक से इसके सुर्ख होते चेहरे को देखा। यार सॉरी माही, बारिश इतनी थी मोबाइल बंद हो गया था मेरा, अभी मैंने ऑन किया है। तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं फुटबॉल ग्राउंड के पास वाली क्लास में हूँ यार। माही, इतनी दूर में वहां तक आते तो पूरी भीग जाऊंगी। तुम एक काम करो, तुम वहां से मेरे डिपार्टमेंट तक आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारे। ध्यान से आना, भीगना मत। क्या हुआ? इसका लटका मुंह देखो बोझ से बिना न रह सका। मुझे इसके डिपार्टमेंट तक जाना है। ओके चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूँ। नहीं, आप नहीं, आपके चोट लगी है, बारिश से तकलीफ होगी। ओ तो फाइनली आपको एहसास होगी मेरे लगी हुई है।
اگر آپ مجھے شرمندہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہی بھول ہے، میں شرمندہ نہیں ہوتی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی اور اس کے نکالے ہوئے باکس میں سے انٹیمیٹڈ نکال کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھو نا۔ اچھا بابا غصہ کیوں کرتی ہوں؟ منہ بسوڑتے وہ ڈیسک پر چڑھ کر بیٹھا تو ماہی نے سب سے پہلے اس کے زخم صاف کیا، پھر مرہم کی اس کی چوٹ پر لگایا اور بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے کوٹ کرے تاکہ پانی نہ پڑے۔ ٹوشی سے صاف کرتی اتنے سر اٹھا کالم کو دیتا اس پاڑ کی۔ چلو اب ایک کام کرو، تم میرا جیکٹ پہنو، اس سے تم بھیگو گی نہیں۔ اس کا کوٹ ماہی کے پیروں تک آتا تھا۔ اور آپ کیا پہنیں گے؟ میں اپنی حفاظت کرنا جانتا ہوں ماہی بی بی۔ اسے اپنا کوٹ پہنانے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنا سارا سامان بیگ میں رکھنے لگا جب ماہی نے اس کے آگے مٹھی کی۔ یہ کیا ہے؟ پین کے لے رہے، اسے کھا کر آپ کو درد نہیں ہوگا نہ فیور ہوگا، میں یہ ساتھ رکھتی ہوں۔ آج آپ کی کام آ گئی۔ اس کی تھیلی پر میڈیسن رکھتے ہوئے وہ ساتھ میں مسجد پہ دے گی۔ ماہی کی دی میڈیسن وہ اپنے بیگ میں پہنتے اسے ماہی کو باہر آنے کا اشارہ کیا تھا، جو اس کا کوٹ پہنے سر پر ہوڈی کا کیپ پہنائے بالکل چھوٹی لگ رہی تھی۔ ہاتھ پکڑو میرا، چھوڑنا نہیں۔ اس کے آگے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے راستہ دیکھ رہا تھا۔ ماہی نے ہچکچاتے اس کا پھیلا ہاتھ دیکھا۔ چلو ماہی، بارش تیز ہو جائے گی، مزید میں نہیں چاہتا تم بیمار پڑو۔ اسے اسٹل کھڑا دیکھ اس نے ایک بار پھر ماہی کو پکارا۔ ماہی نے جھجکتے اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا، جسے مضبوطی سے تھامے وہ ایک ہاتھ سے جیکٹ اپنے اور ماہی کے اوپر کرتے اس نے ایک سر ماہی کو پکڑایا۔ چھوڑنا مت میرا ہاتھ نہ، یہ سرا۔ اسے ہدایت دیتے ہوئے تیز برستی بارش میں باہر نکلا تھا۔ وہ دونوں بارش سے خود کو بچتے تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ ماہی نے سر اٹھا کر اپنے ساتھ بھاگتے عالم کو دیکھا تھا کہ اسے بارش سے بچانے کی ہاتھ خود کو اس کا سایہ بن گیا تھا۔ آج ایک بار پھر وہ اس کی مدد کر رہا تھا، اسے بچا رہا تھا۔ اور ہر بار ایسے ہی کیوں ہوتا تھا کہ جب ماہی نور مشکل میں ہوتی تھی اسے بچانے عالم آ جاتا تھا۔ روم میں اس وقت ہیٹر فل اسپیڈ سے آن تھا۔ میں ٹھیک ہوں میرب، الماری سے بریکٹ نکالتی میرب کو اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ چپ ہو جاؤ، مجھے کام کرنے دو۔ اگر تم بیمار ہوگی تو نوما نے مجھے بہت ڈانٹنا ہے۔ اور خدایا نہیں کہتی خالہ کچھ تمہیں۔ ٹھیک ہوں، میں بیمار تو تب پڑتی نا جب بارش میں بھیگتی۔ میں تو بارش میں ذرا بھی نہیں بھیگی، میں کیسے مانوں؟ تم اتنی دور سے میرے پاس آئی، وہ بھی اتنا بارش میں بھیگے۔ میری کوئی باتوں ہوش ہوئی؟ میں وہاں اتنے لوگ تھے، میں ان میں سے لڑکی کے پاس چھتری تھی، اس نے ہی میری مدد کی۔ نہ جانے کہ وہ میرے کو عالم کے بارے میں بتا نہ سکی۔ شکر خدا کا، ورنہ وہاں ابان اور پاکستان میں خالہ اور انکل پریشان ہوتے۔ اس کے پاس بیٹھے میرب نے ہاٹ چاکلیٹ کا گلاس اس کے آگے کیا، جس نے اسے مسکراتے ہوئے تھاما تھا۔ جب سے وہ دونوں یونیورسٹی سے آئے تو مسلسل اس کے لیے پریشان تھی۔ ابھی تک ریسٹ کرو، میں سوپ لے کر آتی ہوں تمہارے لیے۔ میرب اس کے منہ بنانے پر میرب نے اس سے گھڑی سے نوازا۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے میری جان۔ میرب جاتے ہی ماہی نے بیڈ پر پڑا اپنا بیگ اٹھایا تھا۔ جیسے ہی اس نے زیب اوپن کیے سامنے رکھے سامان نے اسے چمکایا تھا۔ سامنے ہی چاکلیٹ رکھی تھی اور اس کے ساتھ ایک چٹ تھی۔ وہ چٹ اٹھاتے الجھن میں تھی۔ جیسے جیسے وہ چٹ پڑتی کی اس کے ہونٹوں مسکراہٹ میں دلتے چلے گئے۔ بیمار مت ہونا، یہ چاکلیٹ کھانا اور بس ہیٹر آ کے آگے بیٹھ جانا۔ کیا بات ہے، کیوں مسکرایا جا رہا ہے؟ میری بھی آواز پر اس نے وہی چٹ بیگ میں پھینکی تھی اور موبائل نکالا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ ماہی کچھ ہے کیا؟ تم مجھ سے بھی چھپا رہی ہو؟ پاگل ہو کیا تم سے چھپاؤں گی؟ بس مما کی یاد آ گئی ہے، اب مما کو بھی کال کرنی ہے، وہ میری کال کا ویٹ کر رہی ہوں گی۔ تم نے حالہ کہہ دیا، کام کر دیا؟ سوپ کا سب لیتے وہ میرب کا دھیان فوراً اس طرف کر کی تھی۔ بس یار، میں تو بھول ہی گئی تھی، سچ میں ابھی کرتی ہوں، تم یہ پلیز جلدی سے ختم کرو۔ میری بھی بات پر سر ہلاتی اس نے اپنا سارا دھیان سوپ پینے پہ لگایا تھا، مگر دھیان کے داغے اس ایک شخص میں الجھے ہوئے تھے۔ کمرے میں چھایا مل چکا اندھیرا بھی آہستہ آہستہ گہرے اندھیرے میں تبدیل ہو رہا تھا۔ باہر مسلسل برستی بارش نے موسم اور مزید سرد کر دیا تھا۔ آتش میں جلتی لکڑیاں کمرے کو گرمائش بچا رہی تھی۔ ہلکی آوازیں چلتا عربی گیت کمرے کے ماحول کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ بڑا رونمائی سا ماحول بنا کر بیٹھا ہوا سب خیریت ہے نا؟ وہ جو آنکھیں مونڈے بیڈ پر لیٹا تھا، عاقب کی آواز پر ذرا سی آنکھیں کھول کر اس نے عاقب کو دیکھا اور واپس آنکھیں موڑ تو ٹھیک ہے نا؟ بخار تو نہیں ہے؟ اس کی خاموشی میں عاقب نے فوراً اس کے ماتھے پر حرارت چمکا۔ وہ بخار میں تپ رہا ہے، مگر ایک کال نہیں کی نا مجھے؟ میں ٹھیک ہوں، باری آواز پر عاقب نے گور کر اسے دیکھا۔ کیا ضرورت تھی اتنی تیز بارش میں بھیگنے کی؟ دل کر رہا تھا۔ آپ کا دل اور دماغ دونوں گھسک گئے ہیں محترم۔ اس لڑکی کو بارش سے بچانے کے لیے خود بھیگ گیا۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو اس لڑکی کی زندگی یہاں تو حرام ہونا کنفرم تھی۔ ابھی کوئی پیسہ پیدا نہیں ہوا جو میرے ہوتے ہوئے اسے تکلیف دے سکے۔ ہاں بالکل، کیونکہ اس بات کا حق صرف آپ کو ہے نا مسٹر عالم؟ عاقب کے ظفری انداز پر وہ سے مسکرایا تھا۔
ज़फ़र अच्छा करते हो, मगर मगर ऐसा कुछ नहीं, इसलिए प्लीज़ फजूल मत सोचें और मुझे दवा दें। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ बताए कभी या नहीं? उसके हाथ में देते वो खुद भी बेड पर गिरने के अंदाज में बैठा। मुझे फिलहाल सोने हैं, बराए मेहरबानी यहाँ से तशरीफ ले जाए। आपको जाने के कहते इसने आंखें मूंदी तो एक नाजुक सा सरापा इसकी आंखों के पर्दे पर लहराया। सूरज ने आज बहुत दिनों बाद ऐसी शिद्दत दिखाई थी। सैरी करने चारों ओर फैली हुई थी। सर्दी की शिद्दत में भी कमी आई थी। क्या सोच रहे हैं ये शंभू? जब से एक ही जावे में बैठा न जाने किन सोचों में गुम था। जब बशविनशाह की आवाज ने इसे सोचों की गिरफ्त से बाहर निकाला था। हो हाँ, क्या हुआ यशम? आप कब से एक ही जगह लग बैठे हैं? कब से आपको बुला की हो? आप बाहर ही नहीं आए? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, खास नहीं। तुम बताओ क्यों बुला रही थी? यशम, आप झूठ बोलते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते ना। आपको झूठ बोलना आता ही नहीं। तो बताएं क्या बात परेशान कर रही है आपको? यशम का हाथ था मैं बशविशा इसके पास ही बैठी तो यशम ने गहरा सांस भरा बशविशा को देखा। मुझे बहुत डर लगता है कभी कभी बशविशा। किस बात का डर? जो कुछ हुआ इसके बाद में खौफजदा हो ये हो मेरी वजह से। अगर आप माजी की बात कर रहे हैं तो ये बात आप में वो सब जानते हैं। जो हुआ इसमें आपका कोई कसूर नहीं था और उसे पूरी बात कहने से रोक गई थी। लेकिन वशुना कहीं न कहीं में कसूरवार था। अगर वो सब न होता, इसकी आंखों में सुर्खी थी। वशुना का दिल दुख से भर गया। ऋषभ, मौत पर भी भला किसी का इख्तियार है। आप क्यों खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? आप तो सिरे से ही कुछ पता ही नहीं था ना। मगर यशम, ये सब पहले से लिखा था। इस चीज को ऐसे ही होना था। आप और मैं इसे नहीं रोक सकते थे। मेरे साथ जो कुछ हुआ, क्या इसमें मेरा कसूर था? नहीं ना। ये बात मुझे सिखाने वाले आप थे। जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मगर मुझे माही के नसीब से बहुत डर लगता है। हाफिज़ा मासूम है, छोटी है, मैं इसके नसीब से डरता हूँ। हर बाप डरता है यशम, लेकिन अगर हमारी बेटी के नसीब में आजमाइशें आनी लिखी होगी तो आएंगी। मैं या आप इसे नहीं रोक सकते, यही हकीकत है। मशवरे की बात पर यशम ने बेगौर इसे देखा, जो सबसे ज्यादा अपनी बेटी के नसीब को लेकर डरती थी, मगर आज वो इसे समझा रही थी। आप जानते हैं ना, मैं बिल्कुल भी हक में नहीं थी कि वो बाहर जाए, मगर फिर आप सबकी जिद देखकर मैंने सोचा इसे जाने दिया जाए। इस तरह इसके हौसले बुलंद होंगे और मेरे बगैर डरना सीख लेगी। अभी ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं। हाँ, तो आपको भी उदास होने की नहीं। नहीं, मैं काफी बना रही हूँ, जल्दी से आ जाए। बहुत हो गया सोचना और उदास होना। हशम कहा। जबरदस्ती थामे वो से लिए नीचे बढ़ी थी। हालांकि जब वापस आएगा ब्रेड खाते इसने किचन में काम करती आशा से पूछा। इसे भूल जाओ और साल से पहले वापस आएगा। इसकी रूटीन बहुत टफ है। मेरे के जवाब ने इसे साफ मजाक किया। यार, मैं यहाँ सबके साथ रहने आई थी, मगर यहाँ तो मामू और तकी आने का नाम ही नहीं ले रहे। बाबा तो आ जाएंगे 1-2 महीने में। एक प्रोजेक्ट इस सिलसिले में गए हैं। हाँ, तकी का कोई पता नहीं। लेकिन तुम क्यों उदास हो रही हो? मेरे है ना, वो तुम्हें हर जगह दिखाएगी। इसकी घास लाते आयशा ने नरमी से कहा। मम्मा, वैसे आज क्या बनाया है? बहुत भूख लग रही है। आज मैंने सब कुछ माही की पसंद का बनाया है। कभी मेरी पसंद कभी बना लिया करे, बोल कर बनवाना पड़ता है। मेरे पे शिकवा करने में माही बेहद हंसी थी। मैं तुमसे छोटी हूँ, इसलिए हाला मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। मेरे तुम जेलस मत हो। माही उतरा गई थी। मीरब ने नजर भर के इसके मुस्कुराते चेहरे को देखा। टेबल लग जाने बुलाने ने मेरा सर में दर्द हो रहा है, इसे कहते वो रुकी नहीं थी। आयशा हाला, क्या वो मुझसे नाराज हो गई है? मेरे कैसे जाने पर माहिर ने परेशानी से आशा से पूछा। नहीं, वो क्यों नाराज होगी? अब छोड़े इसे और ये बिस्किट खाओ, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बेक किए हैं। वाह खाला, यू आर द ग्रेट। माही के अंदाज पर हंसी पड़ी। वही सीने पर खड़ी मीरब ने खामोशी से यह मंजर देखा। बेदर्दी से लब कुचालते अपनी जैकेट लेते घर से निकलते चली गई। घर से निकल बाहर आ गई, मगर दिल में चुभी बांस हद से ज्यादा तकलीफ दे रही थी। ना जाने कितनी देर यूं ही बाहर टहलती रही और फिर घड़ी में टाइम देखते हुए स्टिल में सवार हुई। अपने मतलूबा स्टॉप पर उतरते हुए इसने सबसे पहले ताज़ा फूलों का गुलदस्ता लिया था। तेजी से चलते हुए अंदर दाखिल हुई तो मतलूबा जगह पर आई थी, जहां सामने देख उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी। कैसी है, नाराज तो नहीं है ना मुझसे? फूल साइड पर रखते हुए अपने लिए जगह बनाती बैठ गई। पाकिस्तान से माही आई है और मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली इतने वक्त के इंतजार के बाद वो आ गई। इंतजार तवील था मगर रायगा नहीं गया। मुझे उम्मीद है अब सब ठीक हो जाएगा। अपनी बात कहते वो से मुस्कुराया। आपको पता है ना, आपका मुझ पर बहुत एहसान है। मैं आपका हर इंसान चुकाना चाहती हूँ। मुझे यकीन है एक दिन आप मुझ पर फख्र महसूस करेंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, रात होने वाली है। आपको एक पुरसुकून नींद लेने में फिर आऊंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ यहाँ सब संभालने के लिए, परेशानी की कोई बात नहीं। बाय बाय। आसमान पर स्याही माहिल बाद अपना डेरे जमाने लगा था। गहरा सांस भरते हुए उठकर बाहर आई। वो जल्द एकदम से पुरसुकून हो गया था।
पुरसकून सांस फजा में खर्च करते पूरे दिल से मुस्कुराई थी। हर रोज ही की तरह एक बार फिर अफरा तफरी में तैयार हो रही थी। इसकी जल्दबाजियां देख आशा मुस्कुराते इसका ब्रेकफास्ट रेडी करने लगी। हाला, आप मेरे को भी कुछ सिखा दें, अकेले अकेले सब करती रहती हैं। कर लिया तुम्हारी मेरों के सभी काम, जान ना निकल जाए इन मोहतरमा की। आशा ने जलन माही का कह गूंजा, वहीं मेरे पे चेहरे का रंग तब्दील हुआ था। हाँ, अब ऐसी बात भी नहीं है। मेरी की बदलती रंगत देखते ही फौरन से बोली थी, मगर तब तक मीरे उठ चुकी थी। माही, मुझे लेट हो रहा है, तुम आ जाने में जा रही हूँ। अपने बैग उठाते माही को कहती, बिना ऐसे कुछ भी बोलने का मौका दिए घर से निकलती चली गई। माही ने बेबसी के आलम में इसे जाते देखा। मीरे क्या कहेगी है इसका टेस्ट। हाला, मैं भी जा रही हूँ। इनके हाथ से सिगमज लेकर बैग में रखते हुए भागकर मेरे को पीछे गई। तेजी से भागते हुए बस स्टॉप तक आई, मगर वो बस जा चुकी थी। इसे क्या हो गया है, अचानक खुद से कहते हुए वहीं बस स्टॉप पर बैठी दूसरी बस का इंतजार करने लगी। ये जाने बगैर कोई है जो एक कोने में खड़े से बेगौर देख रहा है। हाँ, अलार्म की आवाज पर बुरी तरह चूकते इसने घड़ी को देखा। आंखों में हैरत धर आई थी। सुबह के 6 बज रहे हैं। पूरी रात नहीं सो सकी थी। एक हाथ में डायरी थी, सारी रात डायरी पढ़ने गुजारी थी। दिल का बोझ पन मजीद बढ़ गया था। गहरा सांस भरते इसने खुद को रिलैक्स किया और डायरी वापस से बेड करते इसने बेड के नीचे रखे बॉक्स में रखकर इसे ताला लगाते बेड के नीचे छुपाई थी। जब तक ये डायरी महफूज थी, इसका माजी का एक गुनाह वहाँ छुपा हुआ था। सच अगर सामने आता तूफान था जो इस सब की जिंदगी तबाह कर देगा, और वो कभी ऐसा होने नहीं दे सकती थी। कल इसे ये कहानी यहीं से शुरू करनी थी जहाँ से इसने छोड़ी थी। हाल माही, सारी पैकिंग हो गई, देख लो कुछ दे तो नहीं गया। अनाबी के पूछने पर नफी में सर हिलाते खिड़की से हटते हुए बेड पर आई थी। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा अनाबी। ऐसे बुरे दिल से जाएंगी तो कैसे चलेगा गुड़िया। अनसा बेटियां इतनी खुशी हैं कि आप वहाँ पर जा रही हैं। अगर ऐसे करेंगी तो अच्छी बात तो नहीं होगी ना। इनकी बात वो चुप रहेगी। माही, गुड़िया चलो आ जाओ, वसी इंतजार कर रहा है। आगा जान की पुकार और शाल ओढ़ते हुए नीचे आई तो वसी आगा जान के साथ बैठा था। इसे देखकर फौरन उठकर इसके पास आकर इसका बैग इससे ले लिया। आप दोनों जल्दी आ जाइएगा प्लीज। अम्मू जान का हाथ थामे वो इनसे जल्दी आने का वादा ले रही थी। हाँ, मैं जल्दी आ जाएंगे। अनाबी हमारी बच्ची का ख्याल रखेगा। अनाबी उन दोनों के साथ जा रही थी। ये भी कोई बोलने वाली बात है, हम अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अम्मू जान, आगा जान, आप बेफिक्र रहे। वहाँ सब माही का ख्याल रखेंगे और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी आ जाइएगा। सबसे मिलकर वो लोग बाहर निकले थे। वही उसकी ड्राइविंग कर रहा था जबकि वो उसके साथ आगे बैठी थी। अनाबी सफर शुरू होते ही सो गई थी। वसी ने ड्राइविंग करते एक नजर से देखा। स्याह लिबास में स्याह शाल ओढ़े और खिड़की से बाहर देख रही थी। कंधे तकाते बाल कचन में मुकीम थे। मेकअप से पाक चेहरा। गाड़ी में खामोशी का राय था। वो इतनी कम गोह थी कि सिवाय चंद एक जुमले की इसने एक लफ्ज़ नहीं कहा था। माही, हमें पहुंचने में 2 घंटे लग जाएंगे, आगे ट्रैफिक है, तुम सो जाओ। हम वसी की बात पर सर हिलाते हुए सीट से सटकाई खिड़की की जानब मोड़ गई। कहीं यादें एक बार फिर यादों के पर्दे पर उड़ती आंखों में नीमी भर गई थी। दिल में दर्द सा उठा था, मगर चाहती थी ये दर्द इतना बढ़ जाए कि मौत आकर इसे खुद से गले से लगा ले। माजी यूनिवर्सिटी के तवील सड़क पर चलते इसने सर उठाकर आसमान को देखा। दिल में उदासी ने डेरा जमाया हुआ था। क्या सोच रही हो? वास्तव चुंक कर इसने अपने साथ चलती हुई तानिया से पूछा। देखा, कुछ नहीं, बस वैसे ही आज का मौसम कितना अजीब हो रहा है, उदास उदास सा। हाँ, हो तो रहा है। काम करते हैं, यहाँ पास एक बहुत ज़बरदस्त नूडल्स स्टाइल है, वहाँ के नूडल्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं। नहीं तानिया, मेरा मूड नहीं, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर वॉक करूँ। आर यू श्योर कि तुम नहीं आ रही? यस, तुम जाओ। हौले से मुस्कुराई थी। तानिया से ख्याल रखने की कहती जा चुकी थी। ठंडी हवा से बचने से कोट की जेब में से हाथों को छुपाया और खुद पास मौजूद बेंच पर बैठ गई। अपनी उदासी की वजह इसकी समय से बाहर थी। तुम ठीक हो ना लिटिल गर्ल? आवाज से नजर उठाकर देखा तो सामने आलम को खड़ा पाया। अपनी शर्मीली आंखें इसके चेहरे पर मस्की उसके बोरे से देखते इसे सवाल किया था। माही, आर यू ओके? इसके एक टक देखने में आलम ने इसके आगे चुटकी बजाई। होश में आते वह संजीदा से सर झुका गई। तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। इसे अपने पास बेंच पर बैठा देख इसने गहरा सांस भरते खुद को उदासी से निकालना चाहा। लग नहीं रही ठीक। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। आपकी तबीयत ठीक है? मैंने सुना था कि आप बीमारी में। आई एम सॉरी, मेरा आप मेरी वजह से बीमार। जी, अफसोस हुआ मुझे बहुत। इसकी बात करते हुए अपनी बात का तासुब वाली नजर से थे देखने लगा। मैंने क्या किया? वो हैरान हुई। मैंने तुम्हें बारिश में भीगने से बचाया, खुद बीमार पड़ गए। तुम्हें यह पता था, मगर फिर भी मेरी ये आदत के लिए नहीं आई। ओह, इसकी बात और शर्मिंदगी से सर झुकाऊंगी। वाकई से जाना चाहिए था। आई एम सॉरी आना, मुझे लगा शायद आपको अच्छा ना लगे मेरा आना।
तुम आई तो मुझे अच्छा ना लगे माही, इसकी आंखों में देखकर कहते आलम ने चॉकलेट इसकी तरफ बढ़ाई। वो जो इसकी बातों न समझे से देख रही थी, खामोशी से चॉकलेट थामगी। चॉकलेट खाने से सर्दी भी नहीं लगती और मूड भी अच्छा हो जाता है। थैंक यू सो मच। बार बार थैंक यू कहोगे तो ऐसा लग रहा है मैंने कोई बहुत बड़ा एहसान कर दी तुम पर। एहसान तो नहीं, मगर आपने मेरी बहुत मदद की है। अगर ऐसा है तो थैंक के बजाय तो मेरी हेल्प करके सारे एहसान चुका सकती हो। कैसे वो फौरन राजी होगी। मेरे सामने आए तो थैंक्स ना बोलकर ये मुझे इरिटेट करते हैं। शरारत से कहते उसे खिलखिलाने में मजबूर कर गया। ओके, अब बताओ क्यों अपसेट थी। दोबारा इसी सवाल पर उसने गहरा सांस भरकर आलम को देखा। कुछ नहीं, बस वैसे ही घर वालों से इतनी दूर हूँ। मेरी आंटी और अंकल दोनों घर में नहीं हैं। आज और मेरी कज़न का मूड खराब है तो वो ना कॉल रिसीव कर रही है, ना मुझे पता है कि वो कहाँ है। मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ। इस एक हफ्ते में मेरा एक भी बेस्ट फ्रेंड नहीं बना। मुँह बसर कर कहती हूँ, आलम को कोई छोटी सी बच्ची लगी थी जो ऐसे शिकायत कर रही थी। क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकती हूँ। आप हैरे से इसने आलम को देखा था। हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त बनने के काबिल नहीं हूँ। नहीं नहीं, ऐसे मैंने कब कहा। वो फौरन से बुखलाई तो फिर आपकी सारी फैन गर्ल्स मुझे मार देंगी। जारदाना अंदाज में कहती उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। अब ऐसा भी कुछ नहीं है, मुझे सब पता है। अच्छा क्या पता है। इसने बड़ी दिलचस्पी से माही को देखा था। छोड़िए, आपको बताऊंगी तो रोने लग जाएंगे। दांत तले लब दबाते वो शरारत से कहती अपनी जगह सटी थी। वेरी फनी। इसके पीछे आते वो मुंह बनाकर कहते इस हंसने में मशहूर कर गया। अच्छा, आंखें बंद करके हंसती वो आलम को मसहर कर गई थी। गुलाबी गालों पर पड़ता रिंपल, ऐसे हंसती हो बिल्कुल होश लग रही हो। होते रहे जेलस। दांतों की नुमाइश करते इसने आलम को छुड़ाया था। मूड एकदम ही अच्छा हो गया था। चलो तुम्हें वहां से आइसक्रीम खिलाता हूँ। अब तो दोस्ती होगी है ना। ओके डन डन। वहां तक रेस लगाते हैं, जो हारा वो आइसक्रीम खिलाएगा और वो भी डबल। कहते साथ ही वो फौरन भागी थी। चीटर बैग कंधे पर डालते हुए इसके पीछे भागा था। वो अहमकाना से लैपटॉप स्क्रीन पर नजर जमाए बैठी मुझसे मुस्कुराई जा रही थी। किस बात पर इतना मुस्कुरा रही हो। मेरी भी आवाज पर फौरन से लैपटॉप बंद करते सीधे होकर बैठी थी। मेरी ने इसके मशकूक अंदाज पर आईब्रो चाकर से देखा। क्या हुआ, ऐसे क्यों डर गई हो माही। मेरा तुम आ गई, बात मत गमा। तुम ऐसे क्या देख रही थी लैपटॉप पर। इसका लैपटॉप तकरीबन छुपने मीरब ने अपने सामने किया। अपना लैपटॉप मीरब के हाथ में देखते इसके चेहरे पर हवाई उड़ रही थी। तुम इतना घबरा क्यों नहीं माही। मेरा प्लीज मेरा लैपटॉप मुझे वापस करो। इसे लैपटॉप खोलता देख इसकी जान निकल रही थी और मीरब ने इसकी हैरत से देखा। आई एम सॉरी, प्लीज किसी को मत बताना। तुम छुप छुप कर ड्रामे देखती हो माही। इसके लहजे में बेयकीनी थी। मेरे आई एम सॉरी। ओ गॉड, मामा मुझे तुम्हारी मिसाल देती हैं। देखो जरा, माही को मजाल है जो कोई ड्रामा। इससे पहले वो अपनी बात मुकम्मल करती माही के कालम पर फंसने वाले आंसू ने इसकी कैंची की तरह चलती जुबान को ब्रेक लगाई थी। माही रो क्यों नहीं हुई हो यार, मैं मजाक कर रही थी यार। माही आंसू तवातर इसकी बगालों पर बह रहे थे। मेरी की जान पर बनाई थी। माही जानू, आई एम सॉरी, मैं सच में तुम्हें तंग कर रही थी। इसके खुद से लगाते मेरी ने जल्दी से इसके आंसू साफ किए। जरा सी देर में इसकी आंखें सुर हो गई थी। मेरी जान निकाल दी मेरू। मुझे लगा मुझे अब डांट पड़ने वाली है। कम ऑन, ये मेरा फेवरेट ड्रामा है। अब हम मिलकर मम्मा से छुप कर देखेंगे। वैसे माही, अगर तेरी लाइफ में भी ऐसे ड्रामे जैसा हीरो आ गया तो क्या करेगी। ड्रामे जैसा हीरो कैसे मेरी लाइफ में आएगा। अभी आ भी तो सकते हैं ना। मेरी बात सुन माही, अगर ऐसा लगने कोई अच्छा लग रहा है तो पीछे मत हट जाना। मोहब्बत नसीबे वालों को मिलती है। क्या कुछ भी बोल रही है मेरा, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, मोहब्बत करने नहीं। उफ, ये तो ये सोच। इधर देखो ड्रामा में क्या होगा। हीरोइन पढ़ती भी है और मोहब्बत भी करती है। मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत एहसास है। एक ऐसा शख्स जो आपकी जिंदगी में जो हर कदम पर साथ रहे, आपकी हिफाजत करे, आपके लिए बस। मेरे कुएं पर हाथ रखती इसने मेरे को चुप करवाया। उफ, तुम तो ऐसे कर रही है जैसे तुम्हें कभी शादी ही नहीं करनी। अंकुर और हालांकि भी तो लो मेरे जना, देखो कितने हैप्पी हैं। मेरे बस ना। अच्छा ठीक है, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ, फिर साथ में कुछ देखेंगे। मगर मेरी बात पर सोचना जरूर। ऐसे कहती वो रुकी नहीं थी। मेरे को जाते बिस्तर पर डर सी गई। मेरी भी ये बातें याद करके वह चेहरे पर इसके सामने आया था, जिसे देख वह बुखलाते हुए बैठी थी। नहीं, मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ। खुद को सक्सेस करते हुए वापस से लैपटॉप खोल के बैठ गई। क्लास खत्म होते ही बाहर आई थी जब अचानक किसी ने इसकी कलाई मजबूती से पकड़ के इसे साइड पर किया था। अपने सामने पहले वाले दिन वाली लड़की को देख इसके चेहरे पर हवाएं उड़ी, मगर खुद को मजबूत जाहिर करते हुए हाथ इसकी सख्त गिरफ्त से निकालने की कोशिश करती वो सामने खड़ी लड़की को मजीद गुस्सा दिला की थी। हाथ छोड़े मेरा। आई समझ गुस्से से सुर होती हूँ मुसलसल अपना हाथ इसकी गिरफ्त से निकालने की कोशिश कर रही थी कि इसका हाथ छोड़ने के बजाय वो जबरदस्ती अपने साथ लेकर आगे बढ़ी थी और ताकत में इससे डबल थी।
माही की सारी कोशिश बेकार की। इसे जबरदस्ती घसीटे तकरीबन एक वीरान गोशे में ले आई थी। हाथ छोड़ो मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। रोंसी होते वो रो देने को थी। सारी बहादुरी लम्हे में हो आई थी। क्या हुआ? अब डर लग रहा है? कहाँ की बहादुरी? माही का मुंह दबोचते हुए गुस्से से इसके मुंह पर रगड़ आई थी। देखो प्लीज, इस दिन तुम्हारी वजह से मेरी इतनी इंसल्ट हो, वो भी सबके सामने। क्या लगा था इस आलम की आड़ में हमसे बच जाएगी? गाली देते इसने माही को जोर से जमीन पर धक्का दिया था। बैग से कैमरा निकालते इसने शैतानी नजरों से जमीन पर पड़ी माही को देखा था। रो गड़गड़ाओ और बोलो आपको एक डरपोक लड़की है, ताकि सारी यूनिट को पता चले। इससे पहले मजीद कुछ कहती अचानक इसका कैमरा उछल कर दूर जा गिरा था। हाथ लगने वाली चोट बहुत शिद्दत थी। माही नूर ने खौफजदा नजरों से इसे देखा, फिर सामने खड़े शख्स को जिसकी आंखों में लहू झलक रहा था। यूं इस लड़की ने की जानब उंगली करता हुआ घुराया, जिस पर सामने खड़ी लड़की का रंग फक हुआ था। आलम आई Don't it right, I will show you मिस समीथा रिच। एक एक लफ्ज चबाकर कहते हुए माही तक पहुंचा था और इसे बाजू से थामकर अपने रूबरू किया था, जिससे पूरा चेहरा आंसू से तर था। जबर से इसने मुठ्ठियां बीजी थी। इन आंखों से गिरे एक एक आंसू का जवाब तुम्हें देना होगा मिस रिचर्ड। अपने लफ्जों से इसे वार करता हुआ इसका हाथ थामे इसीलिए वहां से निकलता चला गया। समंथा ने होश से इसे जाते देखा था, क्योंकि वो आलम था जो कहता था वो किए बगैर वो सुकून से नहीं रहता था। माही स्टॉप क्राइंग। इसके मुसलसल रोने पर वो चिल्लाया तो इससे रोने की स्पीड मजीद तेज हुई। आलम ने गहरा सांस भरकर सामने सर झुकाई बैठी माही को देखा, जो कब से बस रोई जा रही थी। माही प्लीज स्टॉप क्राइंग। इसके कदमों में बैठते बेबसी से कहते हुए इसे चुप कराने की कोशिश में हलकान हो रहा था। वो मुझे मारने वाली थी। इसने इतनी जोर से मेरा हाथ पकड़ा। मेरे बाबा ने कभी मुझे नहीं मारा आलम, इसे बहुत जोर से मारा है। चीख से रोते हुए इससे शिकायतें कर रही थी। रोना तो बंद करो माही, ऐसे कौन बच्चों की तरह रोते हैं। इसे पानी की बोतल जबरदस्ती थमाते खुद उसके पास बैठा था। वो दोनों इस वक्त यूनिवर्सिटी के निस्बतन कम रश वाले हिस्से में थे। आलम नहीं चाहता था किसी की नजरों में आए। तुम चाहती हो इस लड़की को सजा मिले। इसके हाथ से बोतल लेते इसने बहुत संजीद से माही नूर को दहन नहीं। क्यों? उसे हर नजर से देखते इसने, क्योंकि वो फिर और गुस्सा हो जाएगी और आपको भी नुकसान पहुंचा देगी। सू करती इसने अपनी बात मुकम्मल की, जिस पर आलम का कह बहसा आता था। तुम मुझे विलन कहती हो और तुम्हें भी ये भी लगता है कि वो एक लड़की मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। जितनी महफूज हुआ था इसकी बात पर। ऐसे भी इतना भी हंसने की जरूरत नहीं है। वैसे भी विलन देखने में और विलन असल लाइफ में होने में फर्क है। इसकी हंसने का वो बड़ा समूह बना गई थी। लेटर रिपीटर तो मुझे हल्के में ले रही हो। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। काश मैं भी आप जितनी स्ट्रांग होती। मुंह को तोड़ते शिकवा करते इसने मासूम सी शक्ल बनाकर उसे देखा था। तुम बन सकती हो स्ट्रांग, बस रोल नंबर 1 डरना छोड़ दो, क्योंकि जो डर गया वो गया। क्लास, आप मुझे अपना जैसा स्ट्रांग बना देंगे? अच्छा ठीक है, मगर फिर तुमने मेरी नाक नहीं कटवानी। डन डन। चलो अब तुम्हें डिपार्टमेंट तक छोड़ दूं। इसका बैग उठाते हुए आगे बड़ा खुशी से चहकते वो इसके पीछे बढ़ी थी। आज इन दोनों के एक दूसरे के जानब एक कदम मजीद बढ़ा था। माही, इसने तुम्हें हरसान किया और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। शी मीरा प्लीज हजार चुप। खाला सुन लेंगी। दरवाजे की तरफ देखती इसने मीरे को चुप करवाना चाहा था। सो वाट, ये वही है ना जो पहले दिन तुम्हें तंग कर रही थी? मेरे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं ना। इसे उड़ाते हुए मेरे पे किन्ना तो नजर से घूरा। माही, तुम यहाँ हमारी जिम्मेदारी पर हो। जो बात तुम्हें मुझे बतानी चाहिए वो मुझे दूसरी लड़कियों से पता चल रही है। इट्स नॉट गुड, ओके? इफ मेरी आई एम रियली सॉरी। आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। वैसे किसने हेल्प की तुम्हारी? एक सीनियर ने। नजर चढ़ाते मुख्तसर से जवाब देते इसने मीरा को मुतमईन करना चाहा, मगर सामने भी मीरा जैन थी। डू नॉट टेल मी, तुम मुझे सच बातें छुपाने लगी हो माही। इस यूनि में 1 साल से हूँ, तुम्हें कोई मिल गया है राइट? तौबा करो, ऐसा कुछ नहीं है, हम बस दोस्त हैं। अपनी बात कहते इसने दांतों तले लब दबाए। रेली कौन है? कैसा दिखता है? हैंडसम है या नहीं? माई टेल मी एवरीथिंग। मीरा अपने सवालों की बछाड़ ही तो कर दी इस बार। मीरा अब ऐसा कुछ भी नहीं यार, वो बस मेरा दोस्त है। और तुमने मुझे बताया नहीं क्यों? ऐसा कुछ था ही नहीं कि बताने को। माही, मेरे बस सच बोल रही, हमारी दोस्ती अभी हुई है। वो इन्होंने कई दफा मेरी हेल्प की है ना, बस इतनी सी बात है। ऐसा समझ नहीं आ रहा था जैसे मेरे को समझाए। अच्छा उफ, अच्छा मुझे ये बताओ वो दिखने में कैसा है? मेरे ने शिदात से पूछा। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम इसे देखोगे तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्यों, कैसा दिखता है? मेरे पे सवाल पर आलम को सोचते मुस्कुराई। मेरे ने हैरत से मीरा के चेहरे पर सजी मुस्कुराहट देखी थी। तुम इसके जिक्र पर मुस्कुरा रही हो? तुम कह रही हो कि वो बस दोस्त है? उफ, मतलब ये खुलिया याद करके मुस्कुराई ना। लंबे बाल, लंबा कद, सुरमई आंखें, हल्की सी शेव, गले में सिल्वर चेन।
माही कोई बदमाश टाइप लड़का लग रहा है मुझे तो। मीरब ने मुतफरकंदा अंदाज में हंसी। मैंने कहा ना तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा, मगर वो बहुत अच्छे हैं अपनी होलिये से बिल्कुल अपोजिट। और आपके मिस्टर विलन का नाम क्या है? चॉकलेट का पैकेट ओपन करते वो मजे से बोली। माही ने लम्हे में सोचा, आलम। इसके नाल पर मुंह तक जाते हाथ में मुहद्दर ले गया। मीरब ने झटके से सर उठाकर से देखा। आलम शाह वो बेचैनी थी, यह हरी चीज होती थी तब भी वह धोखा नहीं कर सकती थी इस नाम पर। शाह, मुझे सर नेम नहीं पता मीरब। मीरब के तासरा जैसे जीव थे, ऐसे समझ नहीं आ रहा था। जगह के बोले, मीरब क्या हुआ? इसके चेहरे पर परेशानी देख मीरब फौरन से सीधे को बैठी। कुछ नहीं हुआ, मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि यूनिवर्सिटी का वो लड़का लड़कियों से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारी हेल्प की, इससे अनबिलीवेबल। ऐसा ही है, क्यों झूठ बोलोगी? वो वाकई मेरे दोस्त बने हैं। इम्पॉसिबल्स। माही नूर, आपने यूनिवर्सिटी के सबसे फेमस लड़के से दोस्ती कर ली, क्या बात है? मेरे भी इसे सड़ा रही थी, इसका अंदाज ऐसा था। माही खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूनिवर्सिटी में क्रिसमस ब्रेक होने वाला था, रूटीन एकदम से टफ हो गई थी। हर कोई अपने सारा काम छुट्टियों से पहले करना चाहता था। यार एक काम करते हैं, हम ट्रिप पर चलते हैं, कैंपिंग करेंगे। सानिया तानिया सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। मोबाइल में मसरूफ माही ने सर उठाकर से देखा जहां आलम की तस्वीर इसके सामने थी। दिन गुजरने के साथ इन दोस्ती मजबूत होती जा रही थी। माही बातें तवील होने लगी थी। मीरब कहती थी ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, इसकी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं थी। माही किन सोचों में गुम हुआ, कहीं तो नहीं तो वो तो इन पता है जी के वापस आ गया है। कौन जी के? इस यूनिवर्सिटी का गुंडा। लास्ट टाइम इसकी फाइट की वजह से इसे सस्पेंड कर दिया था। फर्स्ट डे जिन लोगों का ग्रुप तुम्हारी रंगे कर रहा था वो इसका लीडर है। यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग भी होते हैं? माही ने तजब से पूछा। हाँ, बदकिस्मती थे। दो ग्रुप बहुत स्ट्रांग है, एक आलम का और एक जी का। मगर जी के हवान है, वो खून खराबा करने से भी अब ग्रेज नहीं करता। मैंने सुना है बाहर रहकर इसने कोई टीम ज्वाइन की है। इट्स टू मच स्क्रीन। मेरी मम्मा को पता होता कभी आने न देती। माही ने छिड़छिड़ी ली थी। चलो तुम लोग बातें करो, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। ओके, फिर कल मिलते हैं। लाइब्रेरी की तरफ जाते इसने मोबाइल निकाल कर चेक किया था, मगर वहाँ कोई मैसेज नहीं था, और ऐसे इतने वक्त में पहली बार हुआ था। आलम पता नहीं आज कहाँ मसरूफ है। खैर मुझे क्या। मोबाइल बैग में डालते हुए सीधे लाइब्रेरी में आ गई। मूड ऑफ हो चुका था, मगर खुद को चेयर अप करते हुए वो उस काम में मसरूफ हो गई। शीट, मोबाइल को भी अभी बंद होना था। वो ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था। आज इसे लिस्ट फाइल करनी थी। लैपटॉप बंद करते इसने सिगरेट सुलगाई। हाँ, फूकता रहा, ये जहर तो। कैंप में दाखिल होते आकब ने इससे देखा तो बोले बगैर ना रह सका। मेरा मोबाइल बंद हो गया। लिस्ट फाइनल करनी थी तो खेल रहा है आलम। तो इस लड़की के साथ क्या करना चाहते हैं? मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ आकब? ये बात तो मुझसे पूछ रहा है। हमारी बात बस बदली की हुई थी, तू इसके साथ इतना अच्छा क्यों बन रहा है? वो गुस्से से भरा हुआ था। आलम ने गौरी से देखते दूसरी सिगरेट सुलगाई थी। ये मेरे प्लान का हिस्सा है, तुझे इससे मोहब्बत तो नहीं होगी? आलम देख। शिट अप, मुझे मोहब्बत और आलम ये दो अलग चीजें हैं। आलम की जिंदगी में इस लव से कोई जगह नहीं। सिगरेट पहले तले मसलते इसने तीसरा सिगरेट निकाला। तूने समझा को धमकाया क्यों? इस लड़की ने के लिए तू इन लोगों का सब पंगा क्यों लेकर बैठ गया? अगर तुझे इससे मोहब्बत है नहीं है, हाँ फूंक। एक काम करना, सारी सिगरेट एक ही बार पी ले ताकि तेरे अंदर लगी आग और बढ़े। इसे मुसलसल तीसरा सिगरेट निकालते देख बुड़का। आलम ने ना गौरी से इसका गुस्सा होना देखा। क्यों दिमाग खराब कर रहे अपना? टेबल पर पैर रखते वो रिलैक्स अंदाज में बैठे, सीने पर हाथ बन लगा। इसके अंदाज पर आंखों ने बेगौर इसका चेहरे देखा। तुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा है क्या? वो लोग माही को टारगेट बना रहे हैं। सिमथा ने जी के इसकी सारी डिटेल्स दे दी है। इसकी बात पर एकदम से सीधा होकर बैठा। क्या मतलब इस बात का? इसका क्या प्लान है मुझे नहीं पता, मगर वो माही का जिक्र कर रहे थे। सिमथा ने बांध ली है इससे। शिट, गुस्से से कहते फौरन से पहला वहां से निकला था। अकब ने हैरत से इसे जाते देखा। और ये कहते हैं इसे मोहब्बत नहीं है माही नूर से। सोचते देखते वो अपनी बाकी साथी को बुलाने लग गया। वो ग्रुप के शुरू में बैठे थे और उनके सामने इनका ग्रुप लीडर जी था। सुनहरी बालों वाली फ्रिंगी, गन्नों तक आते लंबे गहरे नीले आंखें, गर्दन और हाथों पर लातादार टैटूज, गले में सिल्वर और गोल्ड की मोटी चेन पहने वो आंखों में गुस्सा लिए सिर तक को देख रहा था। जी के, तुमसे एक लड़की काबू में नहीं हो रही और तुम खुद को मेरी टीम मेंबर्स कहती हो। इसके लहजे में नागवारी थी। मैं इसे काबू कर लेती, मगर वहाँ आलम आ गया, इसने मुझे धमकाया। सिमता लाचारी से बोली। चलो फिर मिलते हैं आलम से। हवासे से कहता उठा तो इसके पीछे बाकी सभी आगे बढ़े थे। तभी सामने से आलम आता नजर आया। हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे और तुम खुद चल के आ गए। मुझे तुमसे बात करनी है। बात तो मुझे भी करनी है। मैं जरा यहाँ से गायब क्या हुआ? तुम सब ने तो मेरी पार्टी के लोगों को
चुनती समझ को चलना ही शुरू कर दिया। जी के क्या नाम है इस लड़की का? माही। सुना है बड़ी खूबसूरत है, जिसने आलम जैसे पत्थर दिल इंसान को भी गला दिया। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। खुद पर जब्त करते आलम ने मुट्ठियां भींची। माना कि तुम हम में से कहीं ज्यादा काबिल हो, मगर एक लड़की के लिए दूसरी लड़की को धमका रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है लग रही। यार ब्रो, आलम कुछ बोल क्यों नहीं रहा, सुन क्यों रहा है? सैम को आलम का चुप रहना बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। हम बैठ के बात कर सकते हैं। बैठ के क्या बात करनी है, करना तो बेकार है। तुमने मेरी बंदे को हट किया और अब मैं। इसने नाश्तन बात अधूरी छोड़ी। आलम ने नागौरी से देखा। जितना वो जरूरत कर रहा था, सामने खड़ा शख्स इतना ही सब्र आजमा रहा था। मुझे लगता है ये आज आलम से अपनी 2 से 3 हड्डियां तड़वाएगा। सैम को अच्छे से अंदाजा था, अगर एक बार आलम का दिमाग घूम गया तो क्या होगा। वो शख्स अपना गुस्सा दबाकर रखता था, क्योंकि जब इससे गुस्सा आता था तो कोई इससे काबू नहीं कर सकता था। क्या करेगा? इसके दरमियान फाइट हुई, तस्दीक के मर जाएगा। आकब को अलग ही फिक्र खाई जा रही थी। इसकी नजरें आलम के हाथ पे थी, जैसे बरसकून से सिल्वर की चेन लिपट रहा था। क्या बोल रहा था? पूरा बोलना। वो मैं उनसे मुस्कुराया, मगर कुछ जताते हुए ले जा। माथे की रगें उभरी हुई थी। कम ऑन यार, एक लड़की के लिए हम लोगों के बीच क्यों लड़ाई हो? इस जैसी लड़कियां तो तुम्हें और न जाने और भी कुछ पुलिस कह रहा था। इस जैसी लड़की के लिए वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाया। आलम का हाथ उठा था और एक ही मुक्के में जी की जमीन पर गिरा था। गाली दे रहा है किसे? इसे? खुनख्वार नजरें जमीन पर गिरे जी के पर डालते इसने अपना पैर इसके सीने पर रखा। मैं तुझे बताऊं गाली कौन है यहाँ? झुक कर इसके गर्बान पकड़ते वो बहुत ठहरे लहजे में बोल रहा था। सबके चेहरे पर होश मटाया था। मैं बताता हूँ कौन है गाली। एक गिलास पर जोर देकर कहते इसने एक जर्ब इसके सीने पर लगाते सी के बालों को मुट्ठी में लेते इसका सर ऊंचा किया था। यू मास्टर जी के चिल्लाया था, मगर वह एक और तेज होकर इसके मुंह बंद कर गया। लाइब्रेरी में एक कोने में बैठी हुई पढ़ने की कोशिश कर रही थी, जब ध्यान के सभी दागे मोबाइल पर अटके हुए थे। आज सुबह से ना वो इसे देखा था, ना इससे कोई राब्ता हुआ था। ये बात इसे परेशान कर रही थी। उफ माही, ध्यान दो पढ़ाई पर। खुद को सच करते इसने अपना सारा ध्यान वापस से एक पर लगाया, जब अचानक बाहर से आते शोर ने इसकी सारी तवज्जो अपनी जानब खींची। इतना भी से इसने लोगों को कॉरिडोर से भागते देखा। या अल्लाह है, क्या हो गया? जल्दी से अपना सामान बैग में डालते वो फौरन से लाइब्रेरी से निकली। सामने से तानिया भागती सी तरह थी। इसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थीं। माही, चलो जल्दी से यहाँ से निकलना है। क्या हुआ तानिया, सब भाग क्यों रहे हैं? तानिया के साथ तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए वजह पूछी। आलम और ज़ीक की बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है। इससे पहले यूनिवर्सिटी में मसला हो, हमें निकलना चाहिए। इसका हाथ थामे तानिया ने आगे बढ़ना चाहा, जिसके कदम इसके नाम पर जैसे जमीन गिर गई। माही, क्या हुआ? रुक क्यों गई हो? चलो। तुमने क्या नाम लिया? अभी किसकी लड़ाई हो रही है? आलम और जी की। वो भी बहुत खतरनाक। शायद आलम जख्मी हुआ है। और अपनी बेध्यानी में कहते हुए सामने खड़ी लड़की का दिल चीर गई थी। तानिया हाथ छुड़ाती इसने पीछे कदम लिए। माही, कहाँ जा रही है तुम? जाम में बांधने आती हो। बिना कोई जवाब दिए पूरी स्पीड से भागी थी। इससे कैसे भी करके आलम तक पहुंचना था। माही, कहाँ जा रही हो? वहाँ लड़ाई हो रही है। तानी इसी के पीछे आई थी, मगर पागलों की तरह भाग रही थी। ना जाने कितनी बार इसे ठोकर लगी, ना जाने कितनी बार गिरती गिरती बची। इसे परवाह नहीं थी। तमाम स्टूडेंट खौफजदा से इन दोनों को देख रहे थे, जो एक के बाद एक बार एक दूसरे पर करते आपस में गुटमिल थे। आलम के मुखों ने जी का पूरा मुंह सजा दिया था। सबकी आंखों में खौफ था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर फेरे हुए शेर को काबू कर सके। आलम को रोको, मार देगा ऐसे। सेम की बात और आकब ने तासुब से जुनूनी इंसान को देखा था। वो दोनों भी बेबस थे। वो किसी के काबू में नहीं आएगा जब तक इसका गुस्सा कम नहीं होगा। तेजी से भागते हुए जगह आई थी जहाँ स्टूडेंट का रश लगा था। आलम इस रश को चीर कर जगह बनाते हुए मुश्किल आ गई, मगर रश हद से ज्यादा था। आलम वैसे जोर से पुकार रही थी। लोग इसे पीछे दिखेर रहे थे। कोई वीडियो बना रहा था, कोई खौफजदा, मगर कोई एक भी इनके बीच में नहीं आया। आलम, रुक जाए आलम, वैसे आवाज दे रही थी, रुक रही थी, मगर इसकी आवाज कतार खाने में तोते की तरह थी। अपने लिए जगह बनाते हुए आगे बढ़ी थी रही थी। इसे बस इतना पता था कि वैसे किसी भी घर के सामने से लड़के शख्स को रोक रहे, जो आज आतिशफशां बना सब जलाने के डर पे था। जी को धक्का देते इसने अपना हाथ इसे मारने के लिए उठाया था, मगर वो इसे मार नहीं सका। इसका हाथ हवा में मुहलक रह गया। वो अचानक ही इन दोनों के दरमियान आई थी। आलम, क्या कर रहे हैं? बस करें। सामने से उठा। आज मैं इससे बताऊंगा गाली कौन है। नो प्लीज स्टॉप। आलम स्टॉप। इसके सीने पर दोनों हाथ रखें। इसने आलम को पीछे दिखाना था। ले कर जाओ इसे। सिमटा पर चिल्लाते इसने उससे पागल होते आलम को हाथ थमाया। हटा सामने से। गुस्से से दौड़ा तो माही ने बेख्तियार इसका चेहरा हाथों में गिराने में भरा था। आलम, डोंट डू दस। आलम, सुने मेरी, डोंट डू दस डू। आलम इधर देखें, वो रो रही थी। आलम ने हैरत से देखा।
آنکھیں ان بری آنکھوں سے ٹکر دی جس سے ہوش میں آیا تھا، اس کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھیں۔